review of the last lectures. So let's have a quick review of the last lectures. We have started with electrostatics. It's a branch of physics where we study charges at rest. And then we defined what is electric charge. It's an intrinsic property of matter particles. Then we discussed these particles coming from atoms, and then we discussed some ions and so on. These electric charges basically have force of attraction and force of repulsion between them, and this force is calculated using Coulomb's law. Okay, and the Coulomb's law is defined as F is equal to K. It's a constant. Q1 and Q2, these are the two charges. Between them we want to know the electrostatic force. Okay, then we introduce the idea of electric field. Electric field is just like you have a charged particle, and the region or the space around this charged particle where its force of attraction and repulsion can be experienced in terms as electric field. Okay, then we go later and we discuss electric field due to a point charge, which means that we have, let me change the color, we have some charge and then we want to know electric field at point P, and then we take a test charge Q naught at this point P, and then we find the force between these two charged particles, and then from force we basically find the electric field. Okay, or we also find it in this way, that this is equal to K Q1 over R square. Okay, then we discussed in our last lecture that the electric dipole, एक पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, दो पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, और फिर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के बाद हमने एक अब हाउ टू से दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. तो जो फर्स्ट एग्जांपल हमने ली, दैट इज़ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. इट्स टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ लाइक यू हैव टू चार्जेस of equal magnitude but opposite sign, and they are separated by a distance d. That's your electric field. And then because of this system we find out electric field at some point, you can say P, and we find that electric field for the electric dipole is proportional to 1 over ZQ. ये ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू सिंगल चार्ज पार्टिकल्स के, जिनकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड आउट की, जो कि यहाँ से शो करता है. अगर आप इसको देखें, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर क्या है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q0. Okay, and what is Z cube? It's a distance between point P. We can have Q naught over here. It's a distance between center of the system of this charge particle, this dipole, to that point. Okay, अगर आप देखें, in principle it's the same thing. It's the same distance between two charged particles. In this case we have electric dipole. It's a system of two charged particles. बट हम उसको क्या देख रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट के, एक सिस्टम के देख रहे हैं ना. ठीक है. सो इफ़ इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ ये Q है, तो दिस इज़ Q नॉट. But the dependence, the difference between electric dipole, the system of two charged particles, and the electric field because of two particles, the dependence is different. E is proportional, inversely proportional to Z cube. And in this case, for single charged particles, E is proportional to R square. So this stuff is more sensitive. इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप इसको या पॉइंट P को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर ज़्यादा असर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास सिंगल चार्जेस हों और आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हों. ठीक है जी, ये पॉइंट हमने
actually we have discussed it in our last lectures. I just want to take a quick overview review ताकि आप उसको थोड़ा सा आपके जहन में वो फ्रेश हो जाए, वो आइडिया आप उसको अपने जहन में दोबारा से ताज़ा कर लें. ठीक है जी. ओके. आज यू कैन से कि हम एक पार्टिकल से चले थे, फिर हम दो पार्टिकल पे आ गए, फिर हम n पार्टिकल्स पे आ गए. ये सारे पार्टिकल जो थे इंडिविजुअल थे. ये हर पार्टिकल एज अ सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम बिहेव कर रहा था ना, कि आइसोलेटेड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इट्स बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट. बट जब हम थोड़ा सा हम जाना किधर चाहते हैं. एक्चुअली ऑफ कोर्स हम अपनी जो ये नॉलेज है चार्जेस का, इनको जो अपना रियल वर्ल्ड है, जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन पे अप्लाई करना चाहते हैं. हम उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी वजह से जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हों, उनकी वजह से किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाह रहे हैं, दिस इज़ आवर पर्पज़. तो हम क्या करें, हम अब एक ईजीएस्ट अप्रोच है कि आप एक चार्ज पार्टिकल से चलते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन आसान है, उसको समझना आसान है, उसको ड्राइव करना आसान है, उसकी हाउ टू से उसका एक चार्ज पार्टिकल का दूसरे पे उसका इम्पैक्ट देखना या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, यू कैन से इज़ क्वाइट इजी. अब हम उसके बाद फिर हम आ रहे हैं अपने सिस्टम की तरफ. सो हमने दो ऐसा सिस्टम डिस्कस किया इन इलेक्ट्रिक डाइपोल कि जो कि कंपोज्ड ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, बट इट्स अ सिस्टम. Okay, we are moving towards objects are systems. Now आज हम क्या करना चाहते हैं, आज हमारा पर्पस ये है कि हम डिस्कस करें वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, या हमारे पास जो कोई ऐसी चीज़ हो, लाइन हो जाए या सरफेस हो जाए, उस पर हम इलेक्ट्रिक उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी पॉइंट पे उसको देख सकें, या किसी वॉल्यूम को अब हम देख सकें. एंड यू नो व्हेन वी कंसिडर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ enormous number of charges, point charges you can say. अब अगर आप इवन आप कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं जब आप एक थोड़ा सा कोई छोटा पोर्शन ले लें उसका, किसी वायर का, किसी सरफेस का, और वॉल्यूम का जो मतलब स्फीयर ले लें, ये आसान होता है. अभी हम वी विल डिस्कस दैट व्हाई वी प्रेफर सर्कुलर सिमेट्री इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या होता क्या है कि दीज डिस्ट्रीब्यूशंस, या ये जो आपका लाइन है या सरफेस है या वॉल्यूम है, दैट इज़ टर्म्ड एज कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे पार्टिकल जो उनसे होते हैं वो एक, जैसे मैं कहूँ कि एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर नहीं, ऐसे नहीं होता. दे आर क्लोजली स्पेस्ड. अब आप मैटर की बात करते हैं तो वहाँ पे पार्टिकल जो उनसे होते हैं, सॉलिड कैसे बनता है, या आप देखते हैं कि किस तरह से आपके जो मटेरियल हैं वो फॉर्म होते हैं. तो उसमें क्या होते हैं, दे आर हाउ टू से कि क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, और इनका जो नंबर है दैट इज़ एनॉर्मस. आप कहें कि बिलियंस में ये नंबर होते हैं. तो इस किस्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस किस्म की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, वी टर्म इट एज इन continuous charge distribution. ठीक है. और in case of continuous charge distribution, since these charge distribution can include an enormous number of charge particles, we find the electric field that they produce by means of calculus, rather than by considering कि मैं एक चार्ज लूँ, फिर दूसरा चार्ज लूँ, फिर तीसरा चार्ज लूँ. इस तरह से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते. एंड यू नो व्हाट इज़ एक्चुअली कैलकुलस यूज्ड फॉर, इट्स जस्ट मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कॉन्टीन्यूस चेंज. तो जब कॉन्टीन्यूस की साइड पर आप आ जाते हैं तो आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलस जो है वो उसको क्वाइट अलॉट हेल्पफुल आपके लिए साबित होता है. ठीक है जी. सो हम क्या करेंगे कि हम और in this situation, when we are talking about continuous charge distribution, we will consider charge distribution rather than total charge. मैं कहूँ कि यहाँ पर चार्ज कितना है, जैसे Q है, यहाँ पर चार्ज कितना है, ये Q नॉट है. हम इस तरह से इसको नहीं करेंगे. we will discuss charge densities. ठीक है जी. अब हम ये देखें कि अब चार्ज डेंसिटीज़ किसको कहते हैं. तो हम चार्ज डेंसिटीज़ की तरफ आ जाते हैं जी, कि चार्ज डेंसिटी ऑफ कोर्स अब हमारे पास कितनी टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हैं. ठीक है. अगर आप देखें कि आपके पास, अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को देखें, हमने एक आधे पार्टिकल से स्टार्ट किया. नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर अ लाइन.
ठीक है, उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये जो आपके पास है दैट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको किससे शो करते हैं? लैम्डा इसका साइन है। इफ़ यू आर टेकिंग लाइन विच मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, तो हम उसको क्या कहते हैं? चार्ज। दिस इज़ योर सी चार्ज एंड एम इज़ मीटर। सो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो आता है दैट इज़ लैम्डा विच इज़ इक्वल टू चार्ज, दिस इज़ योर क्यू per unit length. This is defined as lambda. Okay, then we will consider some sheets, टू डायमेंशनल की हम बात करना चाहते हैं। और अगर हम ऐसी बात करें जहाँ पे हमारे पास सरफेस चार्ज आ रहा है या हमारे पास कोई शीट है उसके ऊपर, या आप यू कैन से कि अब जो शीट होती है ना वो एक्चुअली उसकी जो थिकनेस होती है वो उसकी वर्थ और जो लेंथ होती है उसकी एज़ कम्पेयर टू दीज टू थिंग इतनी स्मॉल होती है कि आप उसको इग्नोर कर देते हैं, विच मीन्स शीट बेसिकली रिप्रेजेंट्स टू डायमेंशनल आपकी सरफेस को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन दैट केस द सरफेस, जब आपके पास शीट आ जाए तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं थ्रू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर हम इसको सिग्मा से डिनोट करें तो हमारे पास आ जाता है दिस इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका आ रहा है। तो ये क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, और अगर मैं इसको छोटा करने के लिए ए से लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया इज़ योर सरफेस एरिया, क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है ना आपकी, तो आपको सरफेस की डायमेंशन मिल जाती हैं, तो यहाँ पे एरिया आ जाता है। ठीक है जी, इसको शो करते हैं सिग्मा से। देन वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम रो कहते हैं, और वॉल्यूम से ही शो करता है कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, और उसको वॉल्यूम है तो आप उसका यूनिट क्या होता है? Its unit is basically meter cube and its unit is charge per meter square. Area क्या होता है? Area का unit क्या होता है? That is meter square. And in case of volume, if I just replace volume with V, then it should be meter cube. ये वॉल्यूम को शो करता है। ठीक है, सी सब में कॉमन है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास चार्ज डेंसिटीज़ हैं। ठीक है जी, वी हैव टू यूज़ दी चार्ज डेंसिटीज़ इन आवर रिंग और लाइन और सरफेस और फॉर द वॉल्यूम टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी बिफोर वी रियली डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स और दिस कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, अब मेरे पास एक्चुअली कुछ मैंने इन फार्मूला कुछ जो भी मैंने फार्मूला किया है, लेट्स सपोज लीनियर का या सरफेस का और वॉल्यूम का, इनको एग्जाम्पल से शो करना चाह रही हूँ ताकि हम इस आइडिया को वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव इज़ अ चार्ज ऑफ -300 E. You know what is E? Okay, is uniformly distributed along a circular arc of radius 4. Arc क्या होता है जी? आपके पास लेट्स सपोज of radius 4 centimeter, of course I need angle, this one angle, यहाँ पे समझे कि एक आपके पास ये डिग्री है, with substance and angle of 40 degree. What is the linear charge density along the arc? अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो आपके पास क्या होगा कि ये अगर आपका रेडियस है दैट इज़ ये आपका सेंटर हो गया, दिस इज़ 4 मीटर 4 सेंटीमीटर। ओके जी, अब आप क्या करना चाहते हैं? आपका जो एंगल है दैट इज़ 40, तो 30 लाइक बन गया बट कंसिडर इट 40। ओके, और ये जो चीज़ है आपकी, ये जो आपका पाथ है, ये जो लेंथ है, सर्कुलर लेंथ जो होती है दैट इज टर्म्ड एज आर्क। यू नो दिस आर्क, आपका बैकग्राउंड एक्चुअली मैथमेटिक्स है, तो आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, बल्कि पता होना चाहिए है एक्चुअली। ठीक है जी, अब हमने what we want to know is linear charge density, that is lambda is equal to charge q. let's suppose कि हमने सिंगल चार्ज के लिए एक्चुअली वी यूज्ड स्मॉल q, और अब मैं इसके चार्ज डेंसिटी के लिए जो चार्ज है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसमें उसको कैपिटल Q कहती है, दैट इज़ पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी,
ना अब ये जो आर्क है आपकी ये आपकी इसकी लेंथ, ऑफ कोर्स इस सर्कुलर लेंथ है ना आपकी, सर्कुलर लेंथ है। अब आपके पास यहाँ पे जो है यू नीड लेंथ, ठीक है। अब इसकी लेंथ हम किस तरह से फाइंड आउट करें? हमारे पास क्या है जी, अगर आपके पास रेडियस हो और एंगल हो, कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क? आप लिख सकते हैं अपने कमेंट्स में। तो मैं जस्ट आई वांटेड टू नो दैट वेदर यू नो इट आर नॉट। और अगर आप लिख चुके हैं तो L इज़ इक्वल टू बेसिकली थीटा r. What is r? r is your radius. Okay, theta the given angle. अब आपने करना क्या है? ऑफ कोर्स एक और स्टेप इसमें आएगा कि थीटा आपके पास किस में गिवन है? डिग्री में। तो डिग्रीज को कैसे बच्चे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्योंकि हमें अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो इसको हमें रेडियन में करना पड़ेगा। तो क्या हम करेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? दैट्स वाई मैंने आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा था क्लासरूम में कि रेडियन एंगल्स का उसका डिग्रीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, आप क्या करेंगे? 40 को आप डिवाइड करेंगे 180 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? पाई के साथ, ठीक है जी। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा देखूं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, एक मिनट, तो ये आ जाएगा कुछ 0.69 समथिंग। आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप देख सकते हैं कि आप एक और इसके आगे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा। ओके जी, इस क्वेश्चन में एक्चुअली यही काम था करने वाला कि आपको जो, क्योंकि बच्चे अब एक तो कॉन्सेप्ट है, हम व्हाट वी वांट टू लर्न इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई लेंथ दी हुई है जिसमें हमें पता है कि बिलियंस ऑफ चार्जेस वहाँ पर होंगे, तो हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑन दैट लेंथ। तो वहाँ पर हम आइडिया एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मैं एक एक यहाँ बैठ के एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, मैं कितने चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस एन आइडिया ऑफ चार्ज डेंसिटीज़। तो अगर आपके पास आपको लेंथ पूछी गई है किसी भी चीज़ की जिस पे आपने चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, तो आप वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक फार्मूला लगाते हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्ज हमें जी गिवन है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा चार्ज है, क्या है जी, हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है 300 E। व्हाट इज़ E? ठीक है, यही होता है ना। ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ में अब हमारे पास क्या है? थीटा इंटू आर 0.698। ओके, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, या आई हैव टू डू समथिंग एल्स विद दिस फोर्स, विद दिस 4? व्हाट डू यू से? ऑफ कोर्स आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04। ओके, और अब आप इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर यूनिट्स, और फिर आप मुझे बताएंगे कि आप कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम अपने डिस्कशन सेशन में ये देख सकें कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है जी। ओके, यहाँ आई मिस दिस माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस चार्ज था। सो चार्ज डेंसिटी मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है दैट इज़ 1.72 इंटू 10⁻⁻15 कूलम खाली आना चाहिए, कुछ और भी आना चाहिए? क्या आना चाहिए यहाँ पे कूलम्स के साथ? इट्स नॉट अ चार्ज, ये चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स कूलम पर मीटर। ओके जी, ये हो गए, ये डिस्कशन थी बच्चे। लेट मी rephrase all this discussion that we are looking for charge density. क्यों हम चार्ज डेंसिटीज को देखना चाह रहे हैं? बिकॉज हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है जब मैंने 2 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को क्या किया है, डाइपोल में हमने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है।
अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि हम अपने 3D ऑब्जेक्ट पे, किसी स्फीयर पे हम एक्चुअली इसमें जाएंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे वाई स्फेरिकल शेप्स आर प्रेफर्ड और सर्कुलर शेप्स आर प्रेफर्ड। हम उस पे जाना चाहते हैं और उसके लिए हम एक एक चार्ज करके, वी कैन नॉट काउंट ऑल दीज चार्जेस 1 2 3 4 5, देयर आर बिलियंस ऑफ चार्जेस, एनॉर्मस नंबर ऑफ चार्जेस, वी कैन नॉट काउंट वन बाय वन। हमने क्या करना है एक्चुअली, हमने वहाँ पर एक तो चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना है। सेकेंडली हमने कैलकुलस यूज़ करनी है, यानी कि आपके पास अगर आपको किसी छोटे पोर्शन के मिल जाते हैं, चार्ज डेंसिटी वहाँ की मिल जाएगी, तो ऑफ कोर्स अब आपने पूरे सरफेस को जब करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने उस एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो पहली एक चीज़ है, ऐसी ऑब्जेक्ट आपके पास, और ऑब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, एक वायर है आपके पास, कोई लाइन है आपके पास, उसकी वजह से आपने किसी दूसरी जगह पे देखना है, तो उस पे जो चार्ज है दैट इज़, उसको जो हम जिस तरह से देखते हैं दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके जी, तो हमने ये कर लिया। अब हमारे पास ऑफ कोर्स जो सेकंड क्वेश्चन बनता है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे ट्रैक करना चाहती हूँ ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए। ओके जी, द सेकंड क्वेश्चन इज़ a charge remains same actually in all these 4 examples. A charge of minus 300 E is uniformly distributed over one face of a circular disc. Let me draw a type of disc. ठीक है जी, ये ऐसी सी बनेगी। अब यहाँ पे क्या है आपका, मैं किसी और कलर से करूँ वैसे, तो ये जो है इस डिस्क के ऊपर सारा का सारा जो आपका 300 E चार्ज है दैट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, ये सरफेस अब आपके पास आ गई है। इस सरफेस पे आपने क्या देखना है, आपने इस पे चार्ज डेंसिटी देखनी है। तो इफ़ यू हैव अ 2 डायमेंशनल सरफेस दैट इज़ अ डिस्क, तो इसकी जो है चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी। ऑफ कोर्स पहली बात तो ये है कि दिस इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट कैंट बी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लीनियर के केस में आपको सिंपल लेंथ एक ही आपके पास लेंथ होती है, दूसरी लेंथ नहीं होती कि आप उसके पूरे उसको कवर कर सकें। और सरफेस के केस में हमारे पास क्या चीज़ होती है जी, फाइंड आउट करने के लिए चार्ज डेंसिटी, कुछ याद है आपको पीछे हमने क्या किया था, दैट वाज, लेट मी चेंज द कलर, एक्चुअली इज सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर ए। जी कोई भी Q आप यूज़ कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल Q विद स्मॉल Q, जहाँ पे सिंगल चार्ज हमने लिया था। अब यहाँ पे चूँकि हम चार्ज डेंसिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस की तरफ आ गए हैं, तो मैंने इस चार्ज को Q लिख दिया है। यू कैन राइट इट विद स्मॉल Q एज वेल, बट एवर यू लाइक। ओके, नाउ वी नीड एरिया। ओके, एरिया किसका आपको चाहिए है, एक सर्कुलर डिस्क का आपको एरिया चाहिए, एक सर्कुलर सरफेस का एरिया आपको चाहिए। वो एरिया किसके बराबर होता है आपको पता है? पता है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ इसको लिखेंगे। कोशिश करें कि जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो सारे बच्चे उसको आंसर किया करें। जी, इस तरह से कोई गलत होने पे आपको डांट नहीं रहा, कोई आपको मार नहीं रहा, कोई आपको पकड़ नहीं रहा, लेकिन आप जब लिखना शुरू करती हैं, गलत हो सही हो, आपको पता है अगर आपने कुछ ना कुछ आंसर लिखना है, आपने रिप्लाई करना है, तो इन दैट केस आप लिटिल बिट मोर कॉन्शियस होते हैं ड्यूरिंग लेक्चर। और उससे मुझे ये भी पता चलता है कि कितने बच्चे अटेंडेंस लगाने के बाद लेक्चर सुन रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, सो आप बताएं जी कि आपके पास एक सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, और आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो किसके बराबर होगा। वैसे अगर आपके पास लेट्स सपोज एक ये हो जाए, स्क्वायर हो जाए, तो उसका क्या एरिया फाइंड आउट करते हैं। ए इज़ इक्वल टू, ऑफ कोर्स यू नो बेटर देन मी, आप मैथमेटिक्स के लोग हैं, तो आपको ये तो आपके लिए बहुत छोटी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल टू pi r square. What is r? r is radius. ठीक है जी, यहाँ वाले केस में आपके पास रेडियस क्या है, दैट इज़ 2, और रिमेंबर इट्स सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो अब हमारे पास सिग्मा अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -300 इंटू, ये मैं क्या लिख रही हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई बताएगा इसको ये क्या है?
और क्यों मैं लिख रही हूँ? बिकॉज द गिवन चार्ज इज़ इन टर्म्स ऑफ ई इज़ फंडामेंटल चार्ज। ओके, सो आप इसकी ये वैल्यू लिख देते हैं और नीचे आप क्या करते हैं जी, अब आपका एक तो पाया आ गया, आपको पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, और साथ में अब आपका क्या आ गया, स्क्वायर करना या नहीं करना? 2 का स्क्वायर करूँगी, ये 0.02 का स्क्वायर करूँ या ना करूँ? एरिया है ना, स्क्वायर की ज़रूरत है हमें? यस है, क्योंकि एरिया में जो आपका फार्मूला है दैट इज़ आर स्क्वायर। ठीक है, आपने इसका स्क्वायर कर दिया। अगेन अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अपने जो आंसर है उसको निकालने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन टैली आवर आंसर्स। और मेरे पास जो आंसर बन रहा है, लेट मी चेक, दैट इज़ सिग्मा इज इक्वल, सिग्मा आ रहा है जी माइनस 3.82 इंटू 10⁻⁴ क्या आ रहा है जी, -14। बच्चे आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप साथ साथ मेरे कैलकुलेट कर रहे हो तो आप राइट अवे उसमें मेंशन, अच्छा अब यहाँ पे क्या करूँ भाई, अपने आंसर को लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे पता चले कि कितने लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। जब हम क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई एक बच्चा बोल देता है, बाकी जो सुन रहे होते हैं, तो यहाँ पे चूँकि आप अलग से, आई होप कि अपने अलग स्पेसिस से आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो काइंडली अगर आप इसको, इट्स गुड थिंग कि आप अपने जो आंसर हैं जो आप कैलकुलेट साथ साथ कर रहे हैं उनको आप अपने कमेंट्स में टाइप करते चले जाएं, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके क्लास पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स हैं मुझे उसमें लगाने में ये वीडियोस, बच्चे ये जो रिकॉर्डिंग है इसको यहाँ पे करने का मकसद जो होता है यूट्यूब लाइव पे, एक तो लेक्चर जो उनसे है वो अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें कोई और अदर डिस्टर्बेंस नहीं होती है। जब मैं आप सब लोगों को ऑनलाइन लेती हूँ एक ही उसमें, जब उसमें मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन करती हूँ तो मेरी आवाज़ जो उनसे है वो ब्रेक होना शुरू होती है, मे बी आई डोंट हैव गुड बैंडविड्थ, तो उसकी वजह से शायद कोई इश्यूज़ होते हैं। तो ये जो लेक्चर आपके पास एक आ जाता है विदाउट एनी इंटरप्शन, क्या आप उसको मिल जाता है, और जो कमेंट्स हैं वो भी ऑफ कोर्स साथ में रिकॉर्डेड होते हैं, वो भी मेरे पास मौजूद होते हैं, तो उनकी मदद से मैं इजीली आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन को कंसिडर कर सकती हूँ। इसलिए ट्राई किया करें कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ या मैं थोड़ा सा गैप देती हूँ उसमें आप अपने आंसर जो उनसे हैं वो टाइप करते चले जाया करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग रियली इंगेज होते हैं लेक्चर में और कितने लोग जस्ट अटेंडेंस के लिए आते हैं। और हमारे टीचर कहा करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो आखिरी टाइम पर आते हैं और बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। तो ऐसी बात ना हो, ज़रा हम भी थोड़ा सा हिसाब किताब आपके साथ करना चाह रहे हैं और रखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके पास आपके लिए निकाल के रखा है, एक मिनट में इसके थोड़ा सा, ये 4th एंड लास्ट है, इसके बाद फिर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, मैं पहले यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस वो हमें अलाउ कर दे। ओके जी, द थर्ड क्वेश्चन इज़ अ चार्ज ऑफ -300 E इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 centimeter, which is a surface of a sphere। आप पॉइंट समझें, इट्स नॉट अ स्फीयर, we are not talking about 3-dimensional object, we are not talking about volume, we are talking about surface. That's the main point in this problem. Okay, what is the surface charge density over that surface? एक तो आपको हिंट मिल ही गया है यहाँ से कि we are talking about surface charge density, वॉल्यूम की बात आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हमने सरफेस वाला फार्मूला ही यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, नाउ इसकी एग्जांपल कैसे, जैसे आपका ये होता है ना, ये जो आप बॉल से, एक तो हार्ड बॉल होता है जिसको आप जो अंदर से सारा फिल होता है, दैट्स एग्जांपल, ये क्रिकेट की बात कह रही हूँ, दैट एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम, वो आपका अंदर से भी फिल होता है। लेकिन जो दूसरा सॉफ्ट वाला बॉल होता है जिसके साथ आप खेलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उस बॉल को, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, तो वो अंदर से खाली होता है, तो उसकी जो बाहर की सरफेस है जिस पे आप अक्सर टेप शेप चढ़ाते रहते हैं, उसको करते हैं, कलरफुल सा कर लेते हैं, तो वो जो सरफेस की अब बात हो रही है। बट दिस लास्ट एग्जांपल में इफ़ यू नोटिस दिस वाज व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इट इज़, ये सिंपल आपकी डिस्क है। ठीक है, लेकिन यहाँ वाले केस में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। ये जो सरफेस है ये एक सर्कुलर, जो आपका जो स्फीयर है उसके ऊपर लिपटी हुई है। ठीक है,
ये एक तरह की 3 डायमेंशनल में आ रही है, बट यू हैव टू कंसिडर ओनली सरफेस, नॉट द वॉल्यूम। चार्ज जो है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है उसके। जब उसके अब अंदर नहीं है, उसके वॉल्यूम में नहीं है, तो यू कैन नॉट टेक वॉल्यूम, यू हैव टू कंसिडर सरफेस ओनली। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या था जी सरफेस डेंसिटी फाइंड आउट करना, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो अब क्या लिखूँ? क्यू तो हमें पता क्या है, तो ए क्या लिखूँ? पाई आर स्क्वायर। क्या ख्याल है आपका? वहाँ पे आपके पास हमने पाई आर स्क्वायर लिखा है कि आपकी जो सरफेस है दैट इज़ सरफेस ऑफ अ डिस्क, ठीक है, 2 डायमेंशनल आपके सामने आपको नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ बच्चा, वो क्या चीज़ है? वो है जी हमारे पास सरफेस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फार्मूला है ये यहाँ काम नहीं कर सकता। तो क्या ख्याल है फिर क्या काम करेगा? कोई बता सकता है मुझे कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? ऑफ कोर्स आर स्क्वायर तो आएगा। आर स्क्वायर क्यों आएगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। एरिया हमेशा 2 लेंथ्स के दरमियान में होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ सर्कुलर सिमेट्री, स्फेरिकल हो, आपके पास सर्कल हो, डिस्क हो, आपके पास जो 2 लेंथ्स होती हैं दैट इज़ आर स्क्वायर, एक आर और फिर दूसरा आर, क्योंकि वहाँ पे जो आपके पास लेंथ्स हैं दैट इज़ इन टर्म ऑफ रेडियस, बट आएगा स्क्वायर क्योंकि आपको क्या करना है? एरिया बनाना है। आपके पास मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। आर स्क्वायर तो हो गया, व्हाट एल्स? पाई आर स्क्वायर या कुछ और लिखूँ? ठीक है जी। सो सिग्मा में मेरे पास क्या आ जाएगा जी? दैट इज़ -300 इंटू 1 आपने लिखा कि ये मैं क्यों लिखती हूँ साथ साथ 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम? ये किसी बच्चे ने बताया है, मैंने भी एक्चुअली आपके साथ साथ वो नहीं देख रही, कमेंट्स नहीं देखी, वो मैं बाद में देखती हूँ। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये क्यों बार बार लिख रही हूँ? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूँ? 2 सेंटीमीटर लिख दूँ? 2 सेंटीमीटर से मेरा काम चल जाएगा? स्क्वायर कर दूँ? क्या कहते हैं? सेंटीमीटर भी मैंने बड़ा खूबसूरत लिखा है वैसे। क्या जी मैं सेंटीमीटर से काम चला लूँ? नहीं बच्चे, अनफॉर्चुनेटली सेंटीमीटर से हमारा काम नहीं चलता। ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 2 सेंटीमीटर इनटू मीटर। सो 0.02 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। और अब आप इसके जो आंसर हैं काइंडली वो इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि आपके पास क्या चीज़ आ रही है। ठीक है जी, मेरे पास आ रहा है, एक मिनट, माइनस तो आएगा 9.55 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। आगे क्या यूनिट लिखूँ बच्चा? मीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। क्या क्यों एक क्या था? चार्ज ओवर मीटर स्क्वायर क्या है? हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आप लोगों को ये पॉइंट? ओके जी। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ों की वजह बात की है। एक ऐसी सरफेस जो आपके पास सर्कुलर है बट उसका क्या है, वो सिर्फ आपको सामने जो प्लेन होता है उस टाइप के उसमें नज़र आ रहा था, हमने पाई आर्ट्स के उसके एरिया बनते हैं। दूसरी सरफेस हमने वो ली है जो कि एक स्फीयर की सरफेस है, स्फीयर पे उसके सरफेस की हमने बात की थी, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया जो सा है दैट इज़ डिफरेंट। ओके ओके जी। द लास्ट प्रॉब्लम आई वांट टू डिस्कस इज़ अ चार्ज of -300 E is uniformly distributed through the volume of a sphere of radius 2 centimeter. Now here comes the volume of a sphere. इसका मतलब ये है कि अब हम किस चीज़ की बात करना चाहते हैं? अब हम बात करना चाहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी की, ठीक है। हमारे पास क्या था जी, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ से ढूंढूँ किधर गया मेरा जो टेबल्स है, एक मैंने आपको जी ये क्या था, पहले हमने लीनियर को डिस्कस किया, फिर हमारे पास हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के 2 प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स हमने की टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, एंड देन वी डिस्कस, नाउ वी आर डिस्कसिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके जी, फार्मूला आपको हमने देख लिया होगा, अभी मैंने क्या लिखा है। ओके जी, अब आपके पास क्या चीज़ आ गई? अब आपके पास स्फीयर आ गया है और फार्मूला में हमारे पास क्या था? रो इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी।
V आपका क्या है जी, वॉल्यूम को शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है, और स्फीयर का रेडियस क्या है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ जी, मेरे पास अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है स्फीयर का, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि किसके बराबर होगा, सो दैट मुझे आइडिया हो कि आप लोग इन चीज़ों से को जानते हैं। जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, वाई क्यूब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होती है, 3 लेंथ्स आती हैं। अगर आप सर्कुलर सिमेट्री की या स्फेरिकल सिमेट्री की बात करते हैं, विच मीन्स यू विल टेक ऑल दीज 3 लेंथ्स इन टर्म ऑफ रेडियस, तो रेडियस का क्या होता है, रेडियस का क्यूब हो जाता है। ओके जी, नाउ लेट मी राइट द 300 इंटू वट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ओवर क्या है जी मेरे पास, वॉल्यूम क्या है 4/3 है, तो इस 3 को अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, पाई आर क्या है जी, हमने लास्ट में निकाला था 0.02 इसका क्यूब। ठीक है जी, अब काइंडली आप इसको ज़रा कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। मीनवाइल मैं भी इसको कैलकुलेट करती हूँ कि क्या आंसर आता है जी। -1.432 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है जी, यूनिट अब मैं क्या लिखूँ, कूलम आ गया ऊपर था, साथ में क्या लिखूँ, ओवर मीटर स्क्वायर से काम चल जाएगा, क्या ख्याल है? नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज हमारे पास आर क्यूब है। आर क्या है जी, आर हमारे पास क्यूब में है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, मीटर क्यूब। सो दिस इज़ माय आंसर। आप इसको, दिस इज़ रो, आप इसको टैली करते हैं, आप अपने उसको कर लें। सो अच्छा, लेट मी टेक अ क्विक रीकैप कि हमने इसको क्या किया है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चार्ज डेंसिटीज। लेट मी फाइंड आउट दिस। अच्छा जी, charge densities. Why we need charge densities? Because we are considering continuous charge distributions. Okay, and this continuous charge distributions includes enormous number of charge, means billions of charges. You cannot count. तो वहाँ पर हम एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज़ चार्ज डेंसिटीज़, कि हम सिंगल चार्ज की बजाय चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि मेरे पास अगर कोई लेंथ है स्पेसिफिक, DL है, DS है, इस पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। देन ऑफ कोर्स हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो 3 टाइप्स की यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन है, कि एक हमारे पास कोई लेंथ हो सकती है, वायर हो सकती है, हमारे पास एक डिस्क हो सकती है, हमारे पास एक स्फीयर हो सकता है। बट जब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे ना, एट दैट पॉइंट आई विल डिस्कस व्हाई वी प्रेफर सर्कुलर सिमेट्री इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हम वी ऑलवेज लुक फॉर यू कैन से सिमेट्रीज। उससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम जो उनसे होती हैं वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। हम किसी एक कंक्लूजन पे जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ से उसको दूसरी सिमेट्रीज के लिए ड्रा करना इट्स लॉट ईजियर। ठीक है जी, सो वी हैव डिस्कस चार्ज डेंसिटीज, कि अगर आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अगर आपके पास कोई लाइन है, लेट्स पुट अ वायर, तो इस पे फाइंड आउट करने के लिए या इसकी वजह से आपको किसी एक पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करते हैं, यू नीड चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह आपके पास कोई डिस्क हो जाए, उसकी सरफेस, इस डिस्क की वजह से आप किसी पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की ज़रूरत हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट आप करते हैं बच्चे, तो उसमें यू नीड, अगर अब मैं एक सिंगल चार्ज की बात करूं, क्यू, आपको चार्ज हर सूरत चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ओके, सो हमने फिर क्या किया, और अगर आपके पास कोई स्फीयर हो जाए जो कि आपके पास 3 डायमेंशनल है, तो उसमें आप क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ना तो प्लीज़ नोट इट, वी डिडंट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस लाइन,
because of this length. We didn't find out electric field because of this surface nor because of this volume. अभी हमने एक स्टेप किया उनमें से, हमने सिर्फ ये लर्न किया है हाउ टू फाइंड आउट द चार्ज डेंसिटीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, ये बात आप मेरी समझ के हैं कि अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक फर्स्ट स्टेप किया है और सारी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वी नो कि हम अब किधर को जा रहे हैं। एक चार्ज कर लिया तो एक ऐसा सिस्टम कर लिया जिसमें दो चार्ज पार्टिकल्स थे। अब हम वन डायमेंशनल किसी भी लेंथ को डिस्कस करेंगे, वायर को ले लेंगे, देन वी विल गो फॉर दिस सरफेस यू कैन से डिस्क के बाद टू डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, देन ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस अबाउट थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या किया है, अपनी आसानी के लिए, अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा करने के लिए, आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए we've discussed these three charge densities। अभी हमने इनको डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आगे यूज़ करेंगे। जब वहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे तो हम वहाँ पे सिंपल लैम्डा यूज़ करेंगे। वी डोंट नीड टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ लैम्डा देन। अब अगर वहाँ पे आ जाएगी सरफेस की बात आ जाएगी, वी विल यूज सिग्मा इंस्टेड क्यू। वी नो दैट दिस इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, देन हम क्या करेंगे कि हमारे पास किसी वॉल्यूम की बात हो रही होगी तो वहाँ पे सिंपल हम रो को यूज़ कर लेंगे और हमें पता होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये लेक्चर जो सा है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने आई ट्राई माई बेस्ट कि आप को कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ी जाए जो आपको प्रॉब्लम करे या आप ना समझ पाए हों। अब ये है कि मैं लेक्चर को फिनिश करती हूँ